Okay, so I hope all of you are getting the board. Okay, so यही न्यूमेरिकल हमने कल देखा था, जिसमें दो कैपेसिटेंस पैरेलल में पहले लगाए और उसके बाद सीरीज में लगाए, और उन दोनों पोजीशंस में उनका जो एनर्जी स्टोर्ड है उनका रेशियो हमको निकालने के लिए बोला गया था। सॉरी, एनर्जी स्टोर्ड इक्वल है, तो ये कंडीशन यूज करके हमको पोटेंशियल डिफरेंसेस का रेशियो निकालने के लिए बोला गया था, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. Just read the question. Here it tells us that two charges of magnitude minus 4q and plus 2q are located at the points 2a, 0 and 5a, 0 respectively. What is the flux due to these charges through the sphere of radius 4a with its center at origin? Okay. So let us try to draw the graph. तो ये आपका ग्राफ पेपर है. ओके, और देखो उसने क्या बोला है कि two charges of magnitudes minus 4q and plus 2q are located at the points 2a, 0 and 5a, 0 respectively. Okay, so where is the point 2a, 0? Okay, let us assume that these points are nothing but a, 2a, other, or just forget about the graph. We'll draw it manually only. So see here, suppose this is the x-axis and this is your y-axis. Okay, and where the points 2a, 0 will lie here. तो ये 2a, 0 पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे x एक्सिस पे ये जो है ये a है, ये सपोज 2a है, ये सपोज 3a है, 4a, 5a एंड सो ऑन लाइक दैट. तो यहाँ पे भी एक पॉइंट है, देखो 5a. ठीक है, ओके. सो वेयर इज द चार्ज हियर इज? तो चार्ज कहाँ पे है, क्या बोला उन्होंने? तो एक तो 2a पॉइंट पे है, देखो ये इधर, और दूसरा 5a, 0 इस पॉइंट पे है चार्जेस. दीज आर द टू चार्जेस. और वो भी कौन से चार्जेस है वो भी हमको दिया हुआ है. 2a पे जो है वो -4q चार्ज है, ये देखो ये -4q चार्ज यहाँ पे आ गया, और इधर +2q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, +2q चार्ज है. ठीक है, और अभी हमको बताया गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू द स्फीयर ऑफ रेडियस 4a विथ इट सेंटर एट ओरिजिन. इसका मतलब हमको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका सेंटर ओरिजिन में होना चाहिए, और इसका जो रेडियस है वो 4a के बराबर होना चाहिए. ये देखो 4a के बराबर रेडियस है, दिख रहा है? ठीक है, तो अगर हमने इस टाइप का सर्कल ड्रॉ किया, ये देखो
ये हो गया सर्कल। अभी इस सर्कल के सरफेस में से कितना फ्लक्स जाएगा तो वो हमको ढूंढना है। इस सर्कल का रेडियस 4a है, देखो ठीक से, ये 4a रेडियस होने की वजह से ये जो सर्कल है वो 2a और 5a के बीच में से पास होगा, देखो ठीक है, इस पॉइंट में से वो पास होगा, नो डाउट। दिस इज द पॉइंट वेयर द सर्कल विल पास थ्रू। ओके, नाउ according to the Gauss theorem, what does Gauss theorem tells us? Gauss theorem tells us simply that the flux, electric flux passing through any closed surface is always equal to 1 upon epsilon naught times the algebraic sum of all the charges enclosed by that surface. करेक्ट है, ये हमारा गॉस थ्योरम कहलाता है। तो अभी इसमें अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स will actually be equal to, in this case, 1 upon epsilon naught into the algebraic sum of all the charges enclosed by this surface. So how many charges are enclosed by this surface? Only one charge is enclosed by this surface, which is minus 4q here. So we can say that this minus 4q will be replaced here instead of this q, that is the charge enclosed here. How much charge is enclosed by the surface? It is 4q, no doubt. And that's why we can just replace it by that and get this phi, that is the total flux, which is going to be equal to minus 4q upon epsilon naught. And this is going to be the final answer. That's all. Check. Answer तो इसमें टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है. This should be the answer because this plus 2q charge lies outside this surface of the sphere, and that's why it will not contribute into the electric flux passing through this sphere, and that's why only the charges which are inside here will contribute into the electric flux inside, electric flux passing through the sphere. Okay, so this is going to be the final answer. And this minus sign, what does this minus sign tells us? That the flux of 4q by epsilon naught enters, remember, तो माइनस साइन का मतलब क्या है? इट एंटर्स द स्पीयर, स्पीयर के अंदर की तरफ वो एंटर कर रहा है, इसलिए वो माइनस साइन यहाँ पे है. Okay, so this is going to be here the final answer. Next one, next question, see it here. 6 microfarad capacitor is charged by a 300 volt supply. It's then disconnected from the supply and then connected to the another uncharged capacitor of 3 microfarad. How much the electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? Okay, so see here, what is the first situation is the 6 microfarad capacitor is charged by 300 volt electric supply. Okay, so see, this is the okay, so this is going to be the first initial condition in which this is the battery, and this battery is of potential difference 300 volt. Okay, it is connected to a capacitor of capacity 6 microfarad.
ओके 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जब 300 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो अभी इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर होता है, तो उसको हम बोल देंगे U1। ओके चलेगा। So U1 is going to be the energy stored in this first capacitor whenever this capacitor is connected to this 300 volt battery. Okay, now we will see the second situation, the next situation in which the same capacitor is disconnected from the battery and is connected to another 3 microfarad capacitor here. तो देखो अभी जैसे ये कैपेसिटर जो है वो हम बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट कर देंगे। देखो ठीक से ये बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया हमने, और फिर ये जो कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैराड का वो हमने लगा दिया। अच्छा, इसके जो प्लेट्स है वो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे और नेगेटिव चार्ज, मतलब प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर आर ऑलरेडी चार्ज्ड and then we connect it with the another capacitor. Okay, so this is the another capacitor which is connected here like this, and this capacitor is of 3 microfarad. This is of 3 microfarad. Okay, and this is of 6 microfarad. Okay, now see what happens, and this combination, इस combination के अंदर जो common potential होगा, तो वो suppose हम मान लेते हैं U V डैश होगा सपोज, या V होगा सपोज, और उस समय इनका जो कॉम्बिनेशन के अंदर का जो पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड, इट्स गोइंग टू बी सपोज U2। ओके, तो U1 and U2 are the energies. Initial energy is U1 and the final energy here is U2. So we want to find out the difference in these two, because पहले U1 इतना एनर्जी स्टोर्ड था, और बाद में जब रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चार्जेस जब रिडिस्ट्रीब्यूट हुए, तो उस प्रोसेस में क्या हुआ कि सम एनर्जी हैज बीन लॉस्ट इन द हीट जनरेटेड। तो ये जो हीट पैदा होता है, वो हीट जनरेट करने के अंदर वो कुछ एनर्जी जो है वो चला जाता है, और उसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम विल ऑलवेज बी लेस देन द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम हियर। तो मतलब पहले जितना अकेले कैपेसिटर के अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर्ड था, वो हमेशा ज्यादा रहने वाला है देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द combination of these capacitors, because some energy obviously must have been lost in distributing the charges. ये जो चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हुए, तो उस प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुआ रहेगा, और उसकी वजह से वो एनर्जी कितना है वो हमको निकालना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, U1 में से U2 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमको लॉस इन एनर्जी मिलेगा। नो डाउट, याद रखो ठीक से, द लॉस इन एनर्जी विल एक्चुअली बी इक्वल टू U1 minus U2। ओके, but it will require to find out U1 first and U2 so that we can find out the difference between these two. So try to find out U1. It's very easy because we know that U1 is always equal to half of C into V square. That's it. ये फॉर्मूला हमारे पास है। ये चलो इसको हम बोल देंगे C1 and V1 square। तो इसका जो ये जो है ये C1 है सपोज, और इधर का जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके पास था तो वो V1 था सपोज। ओके, तो इससे हमको मिल गया हाफ ऑफ C, which is going to be 6 microfarad। ओके, तो 6 माइक्रोफैराड मतलब कितना हो गया, वो 6 into 10 raised to minus 6, माइक्रो मतलब 10 raised to minus 6, याद रखो, into V square। तो अभी V का वैल्यू कितना है, V मतलब ये देखो 300 वोल्ट, तो ये 300 वोल्ट हमको यहाँ पे डालना है, तो ये 300 और उसका भी हमको स्क्वायर करना होगा। तो वो अगर हम करेंगे तो इससे हमको ये मिलेगा, देखो ये सबसे पहले जो है ये 2 को कैंसिल कर दो, तो 2 कैन बी कैंसल्ड विथ 6 लिविंग बिहाइंड 3 हियर, करेक्ट है। तो ये 3 हमको मिलेगा एज अ रिमाइंडर, और इसलिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, देखो 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 इंटू, अच्छा 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और ये 2 जीरोस का स्क्वायर, 2 जीरोस मतलब 100 ना, तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10 रेज टू 4,
10⁻⁴, ओके, जिससे हमको मिलता है ये 3 into 9 which is going to be 27 and that is to be multiplied with 10⁻⁻² which is going to be in joule. So we can write it as, चलो ठीक है, we can write it as it is. So U1 is found out already, which is going to be 27 into 10⁻⁻² joules. Okay, U1 is obtained. Now we'll try to find out U2 here. How will you get that? तो U2 निकालने के लिए तरीका क्या है? तो U2 मतलब it is the energy which is stored in this whole combination here. ये पूरे सेकेंड कॉम्बिनेशन के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको हमको बोलना होगा U2, right? So that U2 can be found out by using a simple concept that whenever the charges are redistributed, they distribute in such a way that both of these capacitors will have the same potential difference. Remember. ओके, सो ये हो गया। तो इसमें देखो ठीक से कि अभी दूसरे सिचुएशन में जो एनर्जी स्टोर होगा तो वो हमको निकालना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ठीक से, द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर इज गोइंग टू बी सपोज Q1 विच इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू C1 into V1। देखो ये एक सिचुएशन जो है ना थोड़ा सेपरेट करेंगे। देखो ये थोड़ा सा समझो इसको ठीक से। अगर एक कैपेसिटर हमारे पास है, ठीक है, जिसका सपोज ये चलो हम 2 मान लेंगे।
दो कैपेसिटर्स है। ये फर्स्ट कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटी हम मान लेते हैं C1 है सपोज, ओके। और उसका जो चार्ज है उसके ऊपर वो Q1 इतना चार्ज है, और ये V1 इतना उसका पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज, ठीक है। और दूसरा जो है कैपेसिटर वो इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली वो चार्ज किया हुआ है। सपोज यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है यहाँ पे, और यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। और लेकिन इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो C2 है, ओके। और इसको हमने V2 इतने पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया, जिसके कारण इसके ऊपर जो चार्ज है वो सपोज Q2 इतना बन गया। अभी देखो, अभी अगर हम सपोज इन दोनों कैपेसिटर्स को अगर कनेक्ट करेंगे, देखो हाँ ठीक से, अगर ये जो लाइन है ये वायर इसके साथ और ये वायर इसके साथ अगर इस तरह से कनेक्ट करेंगे, तो ऐसे प्रोसेस में होता क्या है, देखो देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। सो अगर सपोज V1 is greater than V2, then the current will flow through this capacitor to this capacitor here, so that the potential difference of both of these become equal. And if suppose V1 is less than V2, then the charge will flow from this capacitor to another capacitor here. In short क्या है ना कि जिस कैपेसिटर के अंदर ज्यादा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस कैपेसिटर से कम पोटेंशियल डिफरेंस वाले कैपेसिटर की तरफ करंट फ्लो होता है, और वो इस तब तक होता रहता है जब तक दोनों के अंदर के पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल ना बन जाए, ओके। सो फाइनली क्या अचीव होता है, V1 becomes exactly equal to V2, ये अचीव किया जाता है। ये दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, मींस दिस हैपेंस इन केस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में होता क्या है कि द चार्जेस गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट the potential difference across both of these capacitors will become equal. And that's why we can say whenever these two capacitors are connected to each other, what happens is the charge is redistributed, but the new potential difference between the combination here, ये पूरा जो combination है, इस पूरे combination के across जो potential difference है, तो वो V इतना आ जाता है, V। और वो V find करने के लिए हमको एक simple सा logic use करना पड़ता है। देखो ठीक से, we will have to use the charge conservation. The we can say that total charge present initially, the total initial charge we can say is going to be equal to the total charge final. देखो ठीक से, total final charge we can say. तो ये जो चार्ज का जो कंजर्वेशन है वो अगर हम यूज करेंगे, तो इससे हम पता कर सकते हैं आराम से कि अभी देखो टोटल चार्ज इनिशियल कितना है, सो इट्स गोइंग टू बी Q1 प्लस Q2, करेक्ट है। जिसको ही हम लिख सकते हैं आराम से कि Q1, बिकॉज वी नो दैट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है इसमें कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं C1 इज ऑलवेज इक्वल टू Q1 अपॉन V1, करेक्ट है। जिससे ही हमको ये मिलेगा Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, करेक्ट है, ओके। अभी दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं आराम से कि जो दूसरा कैपेसिटर है, तो उसके अंदर जो चार्ज है वो कितना मिलेगा हमको, तो वो भी देख सकते हैं आराम से। इट विल बी इक्वल टू एक्चुअली Q2। तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है C2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू Q2 अपॉन V2, राइट। जिससे हमको मिलेगा Q2 इज इक्वल टू C2 into V2, no doubt. So that we can say that the total initial charge in the whole system will be equal to, मतलब before connecting, ये कनेक्शन होने से पहले, कनेक्शन हमने अभी तक किया ही नहीं है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया पूरे सिस्टम के ऊपर, तो वो बनेगा C1 into V1 प्लस C2 into V2, करेक्ट है, नो डाउट। एंड देन वी कैन से दिस विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज आफ्टर द कनेक्शन। फाइनल मतलब क्या, ये कनेक्शन करने के बाद जो चार्ज इसके पूरे सिस्टम के ऊपर आता है, तो वो चार्ज निकालने के लिए हमको इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V बन जाता है सपोज। तो दैट V विल बी अक्रॉस टोटल कैपेसिटी। अभी देखो ये दोनों कैपेसिटर जब कनेक्शन करेंगे तो उसके बाद वो कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया उनका। ये देखो ऐसा अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो whenever the two capacitors are connected in parallel, their effective capacity is given by the formula Cp is equal to C1 plus C2, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो अभी यहाँ पे अगर ये बात अगर हम यूज करेंगे कि द टू कैपेसिटर्स whenever they are connected in parallel, their effective capacity becomes the sum of C1 and C2 here. Then so we can get that the total capacity here is going to be C1 plus C2
which has to be multiplied with the common potential of this whole system, क्योंकि एक बार इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो इस पॉइंट के अंदर का और इस पॉइंट के अंदर का, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v रहेगा, and that v will be the common potential difference across the two capacitors here, and that's why this C1 plus C2 multiplied with v actually will give us the total charge after connection, and hence using this formula, ये जो formula है इसको अगर हम थोड़ा rearrange अगर करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा simply v is equal to C1 v1 plus C2 v2 upon C1 plus C2, that's it. So this is going to be actually the formula for finding the common potential whenever the two capacitors are connected in to each other. So the two capacitors, whenever they are charged with the independent potentials like V1 and V2, after connecting it to each other, they have a common potential which is given by this formula. अभी इसमें ऐसा हो सकता है कि ये दूसरा वाला जो कैपेसिटर है वो हमने चार्ज ही नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो बन जाएगा। V2 कैन बी जीरो हियर इन दिस केस। और अगर हमने सपोज पहले वाले कैपेसिटर को चार्ज नहीं किया, सिर्फ दूसरे वाले को कैपेसिटर को चार्ज किया और उसको कनेक्ट कर दिया अनचार्ज कैपेसिटर के साथ, तो इसका मतलब यहाँ पे V1 जीरो बन गया। तो जिसको हम चार्ज नहीं करेंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बनेगा, और जिसको चार्ज करेंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो भी रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे यूज होगा। और इस तरह से हमको ये जो कॉमन पोटेंशियल है जब दो कैपेसिटर्स कनेक्ट किए जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो हमको मिल जाएगा आराम से, याद रखो ठीक से। वो भी अगर हम इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, तभी ऐसा होगा, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, देखो ठीक से, कि ये जो कैपेसिटर है ये हमने इस तरह से चार्ज किया, मतलब देखो ऐसा अगर है कि ये फर्स्ट वाला जो कैपेसिटर है वो हमने चार्ज किया इस तरह से, जिसमें ये V1 इतने पोटेंशियल डिफरेंस तक उसको हमने चार्ज किया, लेकिन इसका पॉजिटिव जो है वो ऊपर तरफ है और नेगेटिव इस तरफ नीचे की तरफ है। द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज C1 and it is charged to up to the potential difference V1, and at the same time another capacitor here which is having the capacity C2 is charged up to the potential difference of V2 here। तो V2 इतने पोटेंशियल डिफरेंस का तक उसको हमने चार्ज किया, लेकिन इसको ऐसे चार्ज किया जिसका नेगेटिव चार्ज ऊपर तरफ है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नीचे है। देखो ठीक से, अभी अगर हमने इन दोनों कैपेसिटर्स को अगर कनेक्ट कर दिया एक वायर के द्वारा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट सपोज ज्वाइन कर दिया, तो whenever these two independently charged capacitors are connected in with the opposite polarity here, in this case we can see that the charges will redistribute in such a way that the common potential now will be actually equal to C1 V1 minus C2 V2 upon C1 plus C2, no doubt। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमको इस केस में यूज करना पड़ेगा जबकि ये दो कैपेसिटर्स इस तरह से होंगे। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखो, यहाँ पे ऊपर जो यहाँ पे न्यूमरेटर है तो वहाँ पे माइनस साइन आ गया, just because the charges are getting subtracted from each other, but capacities are not getting subtracted from each other। capacities are going to get add up only because parallel combination is still there। तो ये भी दोनों कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही है, और इसकी वजह से इन दोनों के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा वो सेम ही होगा, और जितना भी होगा वो हमको इस फॉर्मूला से मिल जाएगा आराम से। तो ये हम समझ सकते हैं आराम से, दिस इज द फॉर्मूला इन दिस सिचुएशन एंड दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला इन this another situation here in which the two capacitors are connected like this in this way। so now we can be able to use this formula here now। अभी देखो यहाँ पे हमको इनको यूज करना है, तो उसके लिए देखो ठीक से कि ये सिचुएशन फिर से एक बार रिकॉल करो। पहले कैपेसिटर C1 मतलब ये 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हमारे पास था जो कि 300 वोल्ट के बैटरी के साथ चार्ज किया गया था, और इस कैपेसिटर को हमने एक दूसरे अनचार्ज्ड 3 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जोड़ दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो कि जो कॉमन पोटेंशियल हमको मिलेगा तो वो कॉमन पोटेंशियल इस फॉर्मूला से हमको निकालना पड़ेगा, C1 V1 plus C2 V2 the whole divided by C1 plus C2। here this C1 is going to be actually 6 माइक्रोफैराड। तो देखो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 into
अभी V1 जो है, V1 का वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, इट इज गोइंग टू बी 300 वोल्ट विच इज ऑलरेडी गिवन हियर, सो दिस इज गोइंग टू बी 300, ओके। प्लस अभी C2 के बदले क्या आने वाला है, ये दूसरा कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है जो कि 3 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, वो 3 आ गया इधर, लेकिन दूसरा जो कैपेसिटर है वो हमने चार्ज किया ही नहीं था। तो ऐसे केस में ये अनचार्ज कैपेसिटर होने के कारण, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, इट इज अनचार्ज कैपेसिटर करके, तो इसलिए उसका जो कैपेसिटर, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो हमको यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा बिल्कुल। तो ये बन गया 0 एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 हियर। One thing is to be noted here that this C1 and C2 are to be in microfarad, right? So microfarad can be taken common, and here C1 and this C2 is also going to be in microfarad only, and that's why we can take this microfarad common from denominator also. तो न्यूमरेटर का माइक्रोफेराड और डिनोमिनेटर का माइक्रोफेराड जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे जो है वोल्ट ही सिर्फ बचेगा यहाँ पे एज अ फाइनल यूनिट। तो इसमें याद रखो ठीक से, माइक्रो मतलब क्या, 10⁻⁻⁶ ना, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे भी इन चारों को कैपेसिटर्स को, तभी भी क्या होगा कि इनका जो 10⁻⁶ है वो न्यूमरेटर में से भी कॉमन आएगा और डिनोमिनेटर में से भी कॉमन आएगा, जिसकी वजह से वो कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वजह से हमको यहाँ पे उसको, उसका जो माइक्रो फैराड है उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसकी वजह से हम ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि हमको मिलेगा 1800 एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय simply 9, okay, which happens to be simply equal to 200, that's it. So this is going to be the 200 volt, which is going to be the potential difference in this combination. तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर इतना पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है। अभी ये पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर है जिसका कैपेसिटी 6 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के इफेक्टिव कैपेसिटेंस के बराबर है, और इसी वजह से यहाँ पे हमको इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी निकालना पड़ेगा। इस पूरे सिस्टम का इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना मिलेगा उसको हम बोलेंगे Cp, because it's a parallel combination. So Cp will be actually equal to C1 plus C2, and hence we can say this will be equal to 6 plus 3, which is going to be 9. But again, don't forget that it is going to be in microfarad, remember. So it is accompanied by 10⁻⁻⁶ here, okay, and then we can be able to find out the energy stored in this system here. तो ये जो U2 है जो हमको निकालना था, तो वो U2 हम निकाल पाएंगे अभी, क्योंकि इसका हाफ ऑफ Cp इंटू V होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर हाफ तो एज इट इज है, और Cp के बदले हमने डाल दिया 9 माइक्रोफेराड, जिसको कन्वर्ट करने के बाद वो बनेगा 9 इंटू 10⁻⁻⁶ फेराड, एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ वोल्टेज का स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे वोल्टेज निकाला, देखो अभी अभी ये देखो, ये 200 वोल्ट जो है वही है वोल्टेज इन द कॉम्बिनेशन, so that is to be replaced here, so 200 and this whole square we have to solve this further. So if we do it here, then we can get this as 1 by 2 into 9 into 10⁻⁻⁶ into 200 का स्क्वायर जो बनता है 4 into 10⁻⁴, that's it. And if we just solve this further, then we can get simply in the next step this 2 will get cancelled, see, तो ये जो 2 है उसको अगर हम कैंसिल कर देंगे इस 4 के साथ, तो वो 2 सिर्फ बचेगा, जिसके कारण हमको ये मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये 9 into 2 becomes actually 18, right? So this is going to be 18 into 10⁻⁻², that's it, joule. So this is going to be your U2 here. तो U2 भी हमको मिल गया, देखो ठीक से U2 मिल गया, और U1 तो ऑलरेडी मिला हुआ ही है, ये देखो ऊपर ये U1 है हमारा, ये देखो इधर, this is going to be U1, okay, and if we use this U1 as equation number 1 and U2 as equation number 2, then we can be able to find out the difference between these two. So if you want to find out the loss in the energy will be actually equal to U1 minus U2, because some energy has been lost here. तो U1 minus U2 करेंगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा आराम से, जो कि simply 27 into 10⁻², minus 18 into 10⁻², which happens to be simply 9
into 10 raised to minus 2 joule. That's it. So this is going to be the energy difference which is going to be there lost. So how much electrostatic energy is lost in the form of heat and electromagnetic radiation, that is to be found out, which is going to be the difference. Okay, so the next one, yeah, 125 small liquid drops, each carrying the charge of 0.5 microcoulomb and each of diameter 0.1 meter, form a bigger drop. Calculate the potential at the surface of bigger drop. Okay, so see here, there are 25 small droplets. तो मान लेते हैं ये जो छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स है, ओके, ऐसे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स है. Okay, and all these droplets are combined together so as to form a bigger drop here. तो ये जो बड़ा ड्रॉप बनने वाला है तो वो इन सभी ड्रॉपलेट्स से बना हुआ है. ठीक है, अभी देखो इस हर एक ड्रॉपलेट का रेडियस कितना दिया हुआ है, सॉरी डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर. तो छोटे ड्रॉपलेट का डायमीटर दिया हुआ है डी, स्मॉल डी उसको हम बोल देंगे, इट्स गोइंग टू बी 0.1 मीटर. ओके, एंड देन इट फॉर्म्स अ बिगर ड्रॉप. तो इसका जो डायमीटर है उसको हम बोल देंगे कैपिटल डी, चलेगा ना, कैपिटल डी. ओके, एंड चलो हम डायमीटर से आगे जाके रेडियस के बारे में बात करेंगे थोड़ा. ठीक है, रेडियस, क्योंकि रेडियस के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है, पोटेंशियल भी और वॉल्यूम भी और सरफेस एरिया भी, राइट. तो इसलिए रेडियस के बारे में बात करना बेटर होगा. तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस फर्स्ट ड्रॉप हियर, ये छोटे ड्रॉप का रेडियस कितना है, तो इसका आधा, डायमीटर का आधा, जो कि बनेगा 0.05 meter. Okay, so this is going to be the radius of this smaller droplet. Okay, now this bigger droplet will have some radius, we can denote it by capital R, no doubt. तो इसको हम कैपिटल R बोल देंगे. और ये हमको पता नहीं है, नो डाउट, लेकिन ये जरूर पता है कि ये 25 ड्रॉपलेट्स हैं. ये पूरे जो है वो 25 ड्रॉपलेट्स मिलके ही ये अकेला ड्रॉप बना हुआ है. तो इसका मतलब जब ये 25 ड्रॉप्स का वॉल्यूम कंबाइन होगा तब जाके इसका वॉल्यूम हमको मिलेगा, करेक्ट है. तो यहाँ पे इसका मतलब हमको यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन यूज करना पड़ने वाला है, वॉल्यूम कंजर्वेशन. तो वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ 25 droplets is going to be the same as the volume of a single drop. तो उसको हम बोलेंगे ड्रॉप. ठीक है, ड्रॉप और ड्रॉपलेट में समझा ना क्या फर्क है. ड्रॉपलेट मतलब वो छोटे छोटे जो है तो उनको हम बोलेंगे ड्रॉपलेट्स, और ड्रॉप का मतलब है जो एक ही जिससे फॉर्म होता है, तो वो बन गया ड्रॉप. चलो ठीक है, तो अभी अगर हम ये यूज करेंगे तो देखो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 25 ड्रॉपलेट्स, हाउ विल यू फाइंड इट आउट. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से. तो इसलिए हमको वो मिलेगा 25 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल ड्रॉपलेट, which is going to be 4/3 into pi into r cube, correct है. Okay, so this is going to be the volume of 25 droplets, which is going to be equal to the volume of a single drop, which is going to be, because ये जो नया ड्रॉप फॉर्म हुआ है वो भी तो स्पेरिकल है, तो स्पीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला उसके लिए भी लागू होगा. तो इसलिए वो बनेगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब. समझा दोनों में डिफरेंस क्या है, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ओके, एनी डाउट. 125, अच्छा, यस 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 रुचिका, सॉरी.
Ritwik also. Yes, yes, yes. Right, right, right. It's 125 droplets. I forgot this 100 and so 125 droplets. Right. तो यहाँ पे डैश 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 बोल देंगे हम, चलेगा ना? ठीक है, तो अभी देखो इसमें अगर हम ये सॉल्व करेंगे आगे तो क्या कैंसिल हो सकता है? देखो दोनों तरफ से 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, राइट? And hence we can say this will be simplified as simply 125 into small r cube, which is going to be actually equal to r cube. Okay, and if we take the square root cube root here, तो अगर दोनों तरफ हमने क्यूब रूट लिया तो 125 का क्यूब रूट क्या बनता है वो हमको पता है, इट्स 5, राइट? एंड आर क्यूब का क्यूब रूट कितना बनता है? सिंपली आर, और इधर कैपिटल आर क्यूब का क्यूब रूट बनता है कैपिटल आर, जिससे हमको मिलता है कैपिटल आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। एंड स्मॉल आर तो हमको पता है ना ऑलरेडी, ये देखो इधर ये जो स्मॉल आर का वैल्यू है वो अगर हमने डाल दिया इधर तो हमको कैपिटल आर का वैल्यू मिल जाएगा आराम से, विच इज गोइंग टू बी 5 टाइम्स ऑफ 0.05 meter, which is going to be actually 0.25 मीटर, राइट? चलो ठीक है, सो कैपिटल आर हमको मिल गया, नो डाउट। ओके, अभी हम देखेंगे ठीक से कि अगर ये कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप। अच्छा, तो हमको सरफेस के ऊपर का पोटेंशियल हमको ढूंढना है। अच्छा, कोई भी ड्रॉप के या स्फीयरिकल कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, सिंपली। अभी जबकि वो बड़ा ड्रॉप है, बिगर ड्रॉप है, तो इसलिए उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर हम यहाँ पे ले लेंगे, और इसका जो चार्ज है वो भी हमको निकालना पड़ेगा। वो दिया तो नहीं है, लेकिन इतना दिया है जरूर कि हर एक जो ड्रॉपलेट है उसके ऊपर 0.5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो उसको अगर हम सपोज स्मॉल क्यू बोल देंगे, ये स्मॉल क्यू सपोज, तो ये स्मॉल क्यू, इसके ऊपर का स्मॉल क्यू, ऐसे हर एक चार्ज के ऊपर, हर एक ड्रॉपलेट के ऊपर जो स्मॉल क्यू इतना चार्ज है वो पूरा कंबाइन होके इसके ऊपर जो चार्ज बनेगा उसको अगर हम बोल देंगे कैपिटल क्यू, तो वी कैन derive the relationship between this capital Q and small q as well, and that we can say that this capital Q is actually going to be equal to 125 times of small q। In the same way here, जैसे हमने यहाँ पे किया कि वॉल्यूम ऑफ 125 ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल ड्रॉप, तो सेम वैसे यहाँ पे चार्ज ऑन द 125 droplets combined together will be the charge on this single drop. Okay, so charge on this single drop will be actually 125 multiplied with this small q here, which is 0.5 microcoulomb. So if we replace this by 0.5 and microcoulomb, तो माइक्रोकूलम के वजह से यहाँ पे 10⁻² into 10⁻⁻6 आ जाएगा, नो डाउट। चलो ठीक है, सो अभी हम अगर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो वो बन जाएगा आराम से 125 का आधा कितना होता है? 62.5, करेक्ट है? सो इट्स गोइंग टू बी 62.5 and that is into multiplied by 10⁻⁻6 coulomb. Okay, or we can keep it in microcoulomb only, no doubt। चलो ठीक है, ये चार्ज तो हमको मिल गया। जस्ट यूज दिस फॉर्मूला हियर इन दिस फॉर्मूला। तो ये जो वैल्यूज है सभी ये हमको यूज करने हैं पोटेंशियल निकालने के लिए। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द पोटेंशियल। ओके, सो v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। अच्छा, अब ये तुमको पता होना चाहिए कि 1/4πε0 का जो वैल्यू है वो हमको पता है 9 इंटू 10⁻9 हुआ करता है। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में ही देखा है, तो वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। बाकी क्यू जो है वो तो हमको यहाँ पे मिला हुआ है ऑलरेडी, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे, जो बनेगा 62.5 इंटू 10⁻⁻6 and that is to be divided by r, which is the radius of this bigger drop, which is going to be this 0.25. So this is going to be 0.25. Okay, we know that 0.25 means 1/4। ये पता है आप सभी को, याद रखो अगर नहीं पता है तो भी, कि 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं एनी टाइम। So because of that we can just write this 0.25 as 1/4 and just take this 4 in the numerator, so that we can get this next step modified as v is equal to, देखो लिख से 9
इंटू, अच्छा ये 10⁻⁹ और 10⁻⁻⁶ क्या बनता है, 10⁻³ बनता है। चलो ठीक है, दिस इज 10⁻³ हियर, that is to be multiplied with 62.5 and that is to be multiplied with 4 here, जो ये 1/4 का रेसिप्रोकल जो करके ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये v बन रहा है हमारा 9, अच्छा 9 को रखो वैसे ही, इंटू व्हाट इज दिस 62.5 इंटू 4, देखो 62.5 का डबल तो 125 होता है और उसका डबल 250 होता है, तो इसलिए वो बन जाएगा 250 डायरेक्टली। so this is going to be 250 and that is to be multiplied with 10⁻³ here, so that we can just solve this further and get this 25 9s are 225, right? So 225 0 and that is multiplied by 10⁻³ so what is the potential, 2.25 into 10⁻⁶, which is there in the answer. okay, तो ये आंसर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो हम लिख सकते हैं आराम से इसको, क्योंकि देखो इसको अगर हम पॉइंट अगर शिफ्ट करेंगे थोड़ा 3 डिजिट्स अगर बैक शिफ्ट करेंगे पॉइंट को, तो इसको लिख सकेंगे आराम से 2.25 into 10⁻⁶ volt, that's it. So this is going to be the final value of potential difference or potential of the bigger drop. okay, let us move to the next question. See here, the dipole moment of water molecule is 6.3 into 10⁻⁻30 coulomb meter. A sample of water contains 10⁻21 molecules whose dipole moments are all oriented in an electric field of strength 2.5 into 10⁻⁵ Newton per coulomb. Calculate the work that is to be done in order to rotate the dipoles from their initial orientations, that is θ1 equal to 0, to one in which all dipoles are the perpendicular to the field, that is θ2 equal to 90. Okay, so see here, yeah, just read this once again. What is given here is, see, the dipole moment of water molecule is 6.3 into 10⁻30 coulomb meter. What is this given here? Dipole moment of water molecule, मतलब सपोज हमारे पास ये कंटेनर है वाटर का, okay, suppose this is the container and it contains the dipoles. So we can show the dipoles directed in any directions like this. Okay, forget about that. So we can show the dipoles like this. तो कोई dipoles ऐसे रहेंगे, तो सपोज सभी dipoles जो है वो एक ही डायरेक्शन में है इनिशियली, which is the right direction suppose. ठीक है, ये सारे dipoles है. Okay, now what is given here is the dipole moment is given, right? That means we are given with this p here. तो p हमको दिया हुआ है 6.3 into 10⁻⁻30 coulomb meter. Okay, this is going to be p here and it contains 10⁻21 molecules. Okay, the number of molecules here is going to be n, which is going to be 10⁻21. Okay, and also whose dipole moments are oriented in in an electric field of strength 2.5 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी दिया हुआ है, इंटेंसिटी जो कि 2.5 into 10⁵ है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। एंड देन we have to calculate the work done to rotate the dipoles from their initial orientation, that is theta equal to 0, to one in which all dipoles are perpendicular to this field. तो मतलब हमको इस डाइपोल को कैसे रोटेट करना है पता है तुमको?
ये देखो ऑलरेडी द ऑल द डाइपोल्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सपोज ऐसा रहा होगा, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो सभी डाइपोल्स ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में बनेंगे, नो डाउट। तो डाइपोल्स का जो डायरेक्शन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल होगा इनिशियली, ठीक है। बट अभी उन्होंने वो ये कह रहे हैं अभी कि अगर किसी एक डाइपोल को हम पकड़ेंगे, सपोज ये डाइपोल को हमने पकड़ लिया और अगर मान लो कि इस डाइपोल को हमको टर्न करना है, ठीक है, टर्न। सो इफ यू वांट टू टर्न दिस डाइपोल फ्रॉम, देखो ठीक से, इस डाइपोल को हम सपोज टर्न करना चाहते हैं इस तरह से, ओके। सो वी वांट टू टर्न दिस डाइपोल फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन। मतलब इन शॉर्ट क्या है, हमको देखो कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, नो डाउट, लेकिन हमको इस डाइपोल को, देखो ठीक से, टर्न करना है। ये सपोज डाइपोल है समझो, अभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो डाइपोल है, तो उसको ग्रीन कलर से मैं डिनोट करता हूँ, चलो ठीक है। ये सपोज डाइपोल है हमारा, ओके। एंड सपोज नाउ वी वांट टू टर्न दिस डाइपोल लाइक दिस, सी हियर, ऐसे उसको हमको टर्न करना है जब तक वो 90 डिग्री ना बन जाए, समझा ठीक से। इस पोजीशन से हमको इस पोजीशन तक उसको टर्न करना है, बराबर। तो ऐसे प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा वो हमको ढूंढ के निकालना है। ऑलरेडी देखो हमने ये देखा है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हेनेवर डाइपोल इज टर्न्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम थीटा इक्वल टू जीरो पोजीशन, मतलब पैरेलल पोजीशन टू टू एनी थीटा एंगल पोजीशन। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वर्क डन W इज इक्वल टू P इंटू E इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन हमको अभी ये जो फाइनल कंडीशन क्या है, फाइनली ये डाइपोल जो है वो 90 डिग्री बनाना है, तो इसलिए थीटा इज गिवन टू बी 90 डिग्री हियर। फाइनल जो सिचुएशन है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, बिकॉज वी वांट टू स्टार्ट द डाइपोल from this theta equal to zero position, and we have to turn it through the 90 degree angle. That means theta 2 must be equal to 90 degree here, and that's why we have to put this theta equal to 90 degree here, so as to get the work done, that is equal to P into E into 1 minus cos 90, where cos 90 is going to be 0 and the work done will be maximum, which is going to be equal to PE here, PE into 1 minus 0, मतलब ही PE simply, ठीक है। तो ये हमको वर्क डन निकालना पड़ेगा, जिसके अंदर P का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी देके रखा है। लेकिन एक बात याद रखो, ये जो वर्क डन मिलेगा तो वो एक डाइपोल के लिए मिलेगा, फॉर वन डाइपोल, ओके। मतलब वन एटम जो है या वन मॉलिक्यूल जो है उसको टर्न करने के लिए इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा, नो डाउट। बट इफ यू वांट टू टर्न all the molecules, then we can have to multiply this whole thing by n here, that is the number of molecules which is contained in this case. So just we can get the final answer as, so see here, W is going to be equal to 10 raised to 21 into P, which is 6.3 into 10 raised to, what is it, 10 raised to minus 30, right? Remember, it's going to be 10 raised to minus 30, okay. And again, the electric intensity here is going to be 2.5 into 10 raised to 5, okay. So if you just solve this further, then we can just multiply this 6.3 and 2.5 together. So just work it out, 6.3 multiplied by 2.5, and that is to be multiplied with 10 का power कितना आएगा, minus 330 plus 21 comes out to be minus 9, minus 9 plus 5 comes out to be 10 raised to minus 4, remember, and this is going to be in joule, okay. तो 2.5 को हम 10 by 4 लिख सकते हैं, देखो
10/4, तो इसका मतलब वो बन जाएगा सिंपली 63/4. ओके, and that is to be multiplied with 10 raised to minus 4, so that we get this as 4 15s are 60 and 0.75, and that is multiplied by 10 raised to minus 4 joule. That's it. Just check. It's correct. 1.575 into 10 raised to minus 3. We can write it as 1.575 into 10 raised to minus 3 joule. That's it. Okay, so this is going to be the final answer. Let us see the next question. That is about a charge of 6 microcoulomb is placed at the origin, and another charge of minus 5 microcoulomb is placed on y-axis at this position 0 6 मीटर. ओके, 6.0 है वो. ठीक है, तो डायग्राम में भी दिख रहा है हमको, ये वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे ये ओरिजिन पे है. ठीक है. Calculate the total electric potential at the point P whose coordinates are 8.0 and 0. ये पॉइंट का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको ढूंढना है. इट्स वेरी इजी, वी कैन डू इट. सी हियर, if we take this diagram and just enlarge it slightly. ये देखो, ये डायग्राम है हमारे पास, थोड़ा बड़ा करके देखेंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है. दिस इज वन चार्ज हियर. ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज है. चलो ठीक है, अभी और एक चार्ज हमारे पास है जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, जो कि +6 कूलम का है. तो ये these are the two charges actually, right? And now we want to find out the potential at this point here, P point here. लेकिन P point पे कोई चार्ज नहीं है. बट अभी देखो, इस पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो कैसे हमको निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए हमको ये डिस्टेंसेस चाहिए. ये देखो, सबसे पहले हमको ये डिस्टेंस लगेगा. तो ये जो पहला ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट का पी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है वो हमको लगेगा. तो उसको हम बोल देंगे चाहिए तो R1 चलेगा. और दूसरा हमको ये डिस्टेंस भी चाहिए. ये देखो, दूसरा जो ओरिजिन है और ओरिजिन का और पी का जो डिस्टेंस है वो भी हमको जरूरी होगा, लगेगा. उसको हम R2 बोल देंगे. चलो ठीक है. सो वी कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी R1 एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली R2. सो व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट हियर, एट पॉइंट P हियर. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है. देखो, 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से जो फॉर्मूला बनता है पोटेंशियल का, वो हमको ऑलरेडी पता है. V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखो एक चार्ज का जो पोटेंशियल है वो कितना बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R के बराबर बनता है, राइट? Q/R. तो यहाँ पे क्या है, 2 चार्जेस है, तो करके यहाँ पे आएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2. दैट्स इट. So here we can get this as a final here. Okay, this is your Q1. Remember, this is Q1 and this is actually Q2. Okay, तो Q1 और Q2 से जितने भी डिस्टेंसेस पे वो है, तो उसके हिसाब से हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. अच्छा, R2 कितना है बोल सकते हो. ये देखो, ये पीक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है 8.0,0, राइट? तो इसका मतलब ये डिस्टेंस R2 कितना हो गया, 8 हो गया, बिल्कुल. और एट द सेम टाइम ये डिस्टेंस कितना हो गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6,0, राइट? वाई एक्सिस पे है ना वो, हाँ, तो 0,6, राइट? तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स अगर 0,6 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, जरूर 6 हो गया. तो ये अगर 6 है और ये 8 है, तो ये हमको मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि R1 स्क्वायर इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस ये जो डिस्टेंस है AO, इस पॉइंट को अगर हम O बोल देते हैं सपोज, ठीक है, तो सिंपली वी कैन से दैट AP स्क्वायर, ओके, AP स्क्वायर इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू OP स्क्वायर. तो OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, जिसमें अभी R1 स्क्वायर, ये
AP मतलब R1 हो गया, OP मतलब R2 हो गया, तो OA कितना है वो तो हमको दिख रहा है ऑलरेडी 6 है करके, तो इसलिए यहाँ पे हम डाल देंगे उसका वैल्यू डायरेक्टली 6 और उसका स्क्वायर। तो इसमें से R1 स्क्वायर हमको निकल आएगा, देखो R1 स्क्वायर विल एक्चुअली बी इक्वल टू R2 स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 8 स्क्वायर plus 6 square. So we know that 8 square is 64 and 6 square is 36. So we can say that R1 square which is going to be equal to 64 plus 36, and 64 and 36 just add up to 100, and hence we can say that R1 square must be equal to 100, so that we can get this R1 simply equal to 10. तो 10 मीटर, ओके, तो 10 मीटर हमको मिल गया। चलो ठीक है, R1 मिल गया, just use it here in this formula and get the answer final. So V can be written to be equal to, so here it is going to be 9 into 10 raised to 9, which is the value of 1 upon 4 pi epsilon naught, no doubt. Q1 is actually going to be, see it here, it is minus 5 microcoulomb, so put it here, so it's going to be minus 5। अच्छा ऐसा करेंगे, माइक्रो दोनों माइक्रो में ही है ना, ये भी माइक्रोकुलम में है और ये भी माइक्रोकुलम में है, तो माइक्रोकुलम की वजह से दोनों का 10 टू माइनस 6 आएगा, वो हम डायरेक्ट ब्रैकेट के बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, कीप इट इन माइक्रोकुलम ओनली। अपॉन R1, हाउ मच इट इज, R1 is going to be 10, right? So this is going to be 10 here, and plus Q2, how much it is, Q2 is going to be उसका चार्ज 6 microcoulomb, again forget about microcoulomb, just keep it as 6 only and divided by R2 here, R2 is going to be 8, that's it here, and this whole thing is to be multiplied with 10 raised to minus 6, which is taken common because these charges are given to be in microcoulomb, and microcoulomb means 10 raised to minus 6 coulomb, okay। Now we can just solve this further and get this as 9। अच्छा ये 10 रेस टू 9 और 10 रेस टू माइनस 6 दोनों मिलके क्या बनेंगे, सो वो बनेगा 10 रेस टू 3, राइट है, सो दिस इज 10 रेस टू 3 एंड दिस मस्ट बी हियर माइनस हाफ, राइट। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो वो बनेगा माइनस हाफ, एंड इसको भी अगर रिड्यूस करेंगे 6/8 को तो वो बनेगा एक्चुअली 3/4, राइट, 3/4। एंड देन इफ वी जस्ट सॉल्व दिस फर्दर, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, तो व्हाट इज दिस 3/4 माइनस 1/2, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा -2/4, तो 3/4 माइनस 2/4 becomes 1/4, right? So we can write this as 9 into 10 raised to 3 into 1/4, and this 1/4 we can cancel out this 4 with 9, leaving behind 2.25 here, and hence we can get this in the next step, that is 2.25 into 10 raised to 3, so 2.25 into 10 raised to 3 volt, which can also be written as 2250 volt, so 2250 volt, this is going to be actually the potential difference, sorry potential at that point। चलो ठीक है, अच्छा अभी और एक हमको करना है, देखो सेकंड क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे कि कैलकुलेट द वर्क डन to bring a proton from infinity to the point P. What is the significance of this negative sign? So अगर सपोज हमको एक जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को अगर हमको इंफिनिटी से P पॉइंट तक अगर लेके आना है तो कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा। Yeah, so basically proton potential is positive, isn't it?
तो बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली. ओके, देखो ठीक से, कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P. What is the significance of this negative sign? They are asking about the work done by the electric field actually. Okay, तो अभी देखो इसमें यहाँ पे जो पॉइंट P है, इसका पोटेंशियल तो हमको मिल गया, नो डाउट. तो पोटेंशियल हमको मिल गया, इट इज गोइंग टू बी 2.25 इंटू 10⁻³ वोल्ट. ठीक है, अभी अगर हमको वर्क डन निकालना है तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अगर V होता है तो वहां पे Q इतना चार्ज लेके आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है. तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? तो उसके लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, द वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ चार्ज Q to the point where the potential is V is given by W is equal to Q into V. That's it. So simply we have to use this formula here. तो यहाँ पे जो charge into potential is going to be the work done. That's it. So if we use it here, then we can get that work done W is equal to charge. What is the charge on the proton? We know that the proton carries a charge that is equal to same as the electron, only the with the positive sign. That means it is going to be 1.6 into 10 raised to minus 19. This is the charge on proton, which must be multiplied with the potential which we have just found out here. अभी अभी हमने वो ढूंढ के निकाला जो कि 2.25, so it is 2.25 into 10 raised to minus 3, no doubt, sorry, 3 plus 3. So if we solve this further, then we get this W is equal to 1.6 into 2.25. How much it is? 2.25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 बनता है, और एक बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 36 बनता है. तो इट्स गोइंग टू बी एक्चुअली 36, but one digit point back, so it's going to be 3.6 actually. So here it is going to be 3.6 into 10 raised to minus 16 joule. What is the problem here? अच्छा, एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि मैथ्स का लेक्चर कैंसिल हो चुका है क्योंकि अतुल सर का नेट बंद है. ओके, इंटरनेट बंद होने के कारण अतुल सर का मैथ्स लेक्चर नहीं होगा आज. तो लेट अस कंटिन्यू unless the numericals are finished. ठीक है ना? कितने न्यूमेरिकल्स बाकी है अभी देखो? एक दो ही न्यूमेरिकल्स बाकी है, हो जाएंगे एक 10-15 मिनट में. सो ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है? एक ही प्रोटॉन है ना? infinity to the point P. Yes, it should be correct. Yes, I'll check it out. Okay, ये याद रखो ठीक से, ये this should be the answer according to the given condition. ठीक है, जो उन्होंने given things दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 3.6 into 10⁻16 जूल इतना आंसर आना चाहिए. ठीक है, तो बाकी अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ किया रहेगा तो फिर अगर गिवन थिंग्स में ही अगर कुछ गड़बड़ रहेगा तो फिर पता नहीं, कुछ गड़बड़ हो सकता है, दूसरा कुछ आंसर आ सकता है अगर गिवन थिंग्स में कुछ प्रॉब्लम है तो गिवन थिंग्स के अकॉर्डिंगली जो भी गिवन थिंग्स है तो उसके हिसाब से ये करेक्ट आंसर होना चाहिए. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates. Each plate has an area of 6 into 10⁻³ meter square
एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 2 मिलीमीटर। ओके, देखो एरिया दिया है, सेपरेशन दिया हुआ है, मतलब समझो ये कैपेसिटर है जिसके ये दो प्लेट्स है, ये सपोज पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और ये सपोज नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे केस में इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया और distance between these two plates is already given. Distance between the two plates is given to be 2 millimeter, right? And at the same time, area of each plate actually is given to be 6 into 10 raised to minus 3 meter square. Okay, and then we'll see the calculate the capacitance of the capacitor. Okay, तो कैपेसिटेंस हमको निकालना है, नो डाउट। कैपेसिटेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, देखो ठीक से, क्यों? क्योंकि या सी कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे पास सिंपली फॉर्मूला है C that is equal to A into epsilon naught upon D, that's it। वैसे A epsilon naught into K होता है, लेकिन यहाँ पे K नहीं आएगा क्योंकि there is a air, they are already given that air is there between the two plates, right? तो दो प्लेट्स के बीच में एयर है तो फिर उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट तो 1 ही बनेगा ना, तो इसलिए फिर यहाँ पे K का वैल्यू यूज करने की जरूरत नहीं है। तो और इससे जो भी आंसर हमको मिलेगा तो वो सीधा कैपेसिटी होगा, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, नो डाउट। सो कैन वर्क इट आउट simply, it is area which is 6 into 10 raised to minus 3 meter square into epsilon naught। epsilon naught का वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी, it's going to be 8.85 into 10 raised to minus 12। okay, and again here it is D is going to be 2 millimeter, right? So it's going to be 2 millimeter, which means it is 2 into 10 raised to minus 3। okay, so here we can cancel it out। ये जो है, ये सबसे पहला 2 जो है कैंसिल करो 6 के साथ, जो हमको 3 बचेगा इधर, और ये 10 टू माइनस 3 और 10 टू माइनस 3 सीधा कैंसिल हो जाएगा, और हमको क्या मिलेगा? तो कैपेसिटी जो है C which will be equal to yes 3 into 8.85, how much it is? 3 5s are 15, 1 carry, 3 8s are 24 plus 1 25, 2 carry and 26 here। okay, and दो डिजिट्स पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा 26.55 into 10 raised to minus 12 farad। this is going to be the capacity। okay, we can write it as 2.655 into 10 raised to minus 11 farad, which is there in the option। okay, आंसर में वही दिया हुआ है उन्होंने। चलो ठीक है, तो ये तो हमको मिल गया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमको मिल गया, नो डाउट। अभी let us try to second question। if the capacitor is connected to 100 volt supply, what will be the charge on the plate, each plate? okay, it's also very easy because we know that the charge on each plate is always given by the formula C into V, that's it। so C is already there, which is 2.655 into 10 raised to minus 11, and that is to be multiplied with the potential difference, which is 100 here। so if we write it as 10 raised to 2, then we can get the charge, that is 2.655 into 10 raised to minus 9 coulomb, which can be written as 2.655 nanocoulomb, which is there in this option और आंसर बी। ओके, तो ये हमको मिल गया, सेकंड का भी आंसर मिल गया, नो डाउट। अभी तीसरा देखो, हाउ वुड द चार्ज ऑन प्लेट्स बी अफेक्टेड if a 2 millimeter thick mica sheet of K equal to 6 is inserted between the plates while the voltage of supply remain connected। अभी देखो ठीक से, यहाँ पे वोल्टेज जो है, वोल्टेज सप्लाई इज कनेक्टेड एंड देन वी इंसर्ट अ प्लेट। ओके, तो इसका मतलब अभी अगर सपोज हमने ये अगर सप्लाई अगर कनेक्ट करके रखा और अगर बीच में यहाँ पे अगर एक प्लेट अगर डाल दिया, प्लेट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि कैपेसिटी तो बढ़ जाएगा। कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे इंटू के भी आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए जो नया सिचुएशन है उसके अंदर हम देख सकते हैं आराम से कि कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगा। और हमको निकालना क्या है? चार्ज निकालना है, ठीक है।
तो चार्ज विल, अभी देखो जब तक बैटरी के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं, तो व्हेनेवर द वोल्टेज सप्लाई इज kept connected, what happens is potential difference remains the same, no doubt. The potential difference will remain the same, and that's why जो 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. But the battery capacitance of the this capacitor will get increased. Because of that, this capacitor will be now will be able to absorb more charge at the same potential, because its capacity has been increased by k times. And that's why finally we can say that, देखो अभी फाइनल जो कैपेसिटी है C डैश, उसको हम बोल सकते हैं. तो न्यू कैपेसिटी कैन बी ऑब्टेन टू बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट इनटू K अपॉन D. अभी इसमें और इसमें क्या फर्क है, देखो ठीक से. सिर्फ इतना ही कि यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन अपॉन D के अंदर K किधर भी नहीं है, और यहाँ पे K एक्स्ट्रा आ गया, करेक्ट है. तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो वैल्यू है C डैश का, वो K टाइम्स ऑफ C होगा बिल्कुल. और K का वैल्यू तो 6 है, और C का वैल्यू हमको ऑलरेडी इधर मिला हुआ है. तो वो अगर हम डाल देंगे यहाँ पे, तो हमको मिलेगा 2.655 इंटू 10⁻⁻11, which is going to be equal to, तो देखो यहाँ पे 6 इंटू 5, yeah, 6 into 5 is going to be 30, 3 carry, and here it is going to be 33, 3 carry again, 39, 3 carry again, 21 into 10⁻⁻11, and 0.3 डिजिट्स पीछे, तो मतलब ये आएगा 21.930. okay, this is going to be the capacity actually. हाँ, ये तो कैपेसिटी हो गया, but we want to find out the potential difference, right? नहीं, charge actually. How would the charge on the plates be affected if a 2 millimeter thick, अच्छा 2 millimeter thick mica sheet, right, and the distance, अच्छा हाँ ठीक है ना, फिर 2 millimeter thick, और ये distance between the two plates is also 2 millimeter only. तो मतलब पूरा का पूरा स्पेस भर गया माइका शीट से, तो उससे वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा, बट चार्ज कितना बनेगा. तो चार्ज निकालने के लिए हमको यहाँ पे अभी इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से. तो न्यू चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर will actually be equal to Q dash, is going to be equal to C dash into V, where C dash is actually 21.93 into 10⁻⁻11, and that is to be multiplied with potential difference of the battery, which is 100 again, मतलब 10⁻², जिससे हमको मिलेगा 21.93 into 10⁻⁻11 into 10⁻². कितना बनता है ये, 10⁻⁹ actually. So this is going to be in coulomb. बट ऑलरेडी ओरिजिनल चार्ज कितना है, ये देखो, ये इतना ओरिजिनल चार्ज है, और ये जो है ये अभी फाइनल चार्ज हमको दिख रहा है. तो अभी again I think this there should be some mistake in the question. k equal to 6 दिया है, तो कैपेसिटी 6 टाइम्स बढ़ जाएगा. तो कैपेसिटी कितना बनेगा, अरे अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया इधर, जस्ट वेट. ये जो है ये कितना आ रहा है, देखो ठीक से. yes, it's going to be 15.93, right, not 21.93, but it's going to be 15.93. okay. So see here, this is what 15.93. Here it is again 15.93.
and here it is again 15.93 into 10 raised to 9 minus 9 coulomb. This is actually going to be the new charge which is to be found out, okay, which is there in the answer. चलो ठीक है, तो ये हमको मिल गया. The next one, find the equivalent capacitance between P and Q. Given that area of each plate is A, the separation between the plates is D. Okay, so see here, first of all, this situation, if we just see this, ये पूरा जो situation है वो अगर थोड़ा अलग तरीके से अगर देखते हो, this situation can be considered to be equivalent to the three capacitors which are connected in series actually. So we can draw its equivalent condition here. तो ये suppose point P है इधर, तो यहाँ से हम start करते हैं. तो ये एक पहला कैपेसिटर बनेगा जिसके अंदर ये देखो, ये सबसे पहला वाला कैपेसिटर है जिसके प्लेट्स का जिसके प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो d/3 है, और उसके प्लेट्स के बीच में जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है या मीडियम है उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, K1 उसको हम बोल सकते हैं. चलो ठीक है, ये दूसरा, और ये तीसरा प्लेट जो कि देखो, these are the three different capacitors which are connected in series, remember. तो ये पॉइंट P है हमारा और ये पॉइंट Q है इधर, और ये डिस्टेंस जो है वो d/3 है, ये डिस्टेंस भी इनके दोनों के बीच में का d/3 है, और इधर का डिस्टेंस भी d/3 है, नो डाउट. And this is here the dielectric constant of the medium between these two plates is going to be K1. The dielectric constant of the medium between the two plates is K2, and here it is K3. Okay, and we can say that the total capacitance of this plate here will actually be equal to C1, which is given by A into epsilon naught into K1 upon d/3, right? तो ये बन गया d/3, no doubt. The second one, ये जो C2 है वो कितना बनेगा देखो, तो हमको मिलेगा फिर से A epsilon naught into K2 divided by d/3 again, and C3 here, ये तीसरे कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है वो भी हमको मिलेगा इस तरह से A into epsilon naught into K3 divided by d/3, करेक्ट है. And then we will be able to find out the effective capacity here. तो इफेक्टिव कैपेसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो देखो इस CS है ना, ये मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमको पता है ऑलरेडी 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फॉर्मूला यूज होता है. तो अगर हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, तो वो बन जाएगा सिंपली 1/CS which is going to be equal to 1/C1, which is the reciprocal of this C1 here, which is going to be d/3 upon, ये देखो d/3 upon A epsilon naught into K1, okay, plus again it is d/3 here, and that is to be divided by A epsilon naught into K2, plus again here it is d/3, and that is to be divided by A epsilon naught into K3. Okay, so that if we solve this further, then we can get in the next step, that is 1/C3 is equal to, sorry, 1/CS ऐसे वो is equal to, अच्छा कॉमन क्या ले सकते हैं आराम से, d/3 A epsilon naught can be taken common, and what we are left inside is 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3. And if we just solve this further, then we can be able to find out, अच्छा K1 K2 K3 कितना है, 136 है, तो उसको अगर यहाँ पे डाल देंगे डायरेक्टली तो हमको मिलेगा 1/CS
विच इज इक्वल टू डी अपॉन 3a एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट 1/1 प्लस 1/, कितना है वो 3, ओके। तो ये 1/3 प्लस 1/6 here, so that if we solve this and take the LCM, इसका अगर LCM ले लेंगे तो ये जो पार्ट है सिर्फ वो कितना बनेगा, देखो ठीक से। तो वो बनेगा 1 प्लस, अच्छा 1 को लिख सकते हैं 6/6, राइट। इस 1/3 को लिख सकते हैं 2/6 and here 1/6 kept as it is. So here it is going to be 6 plus 2, it's 8 plus 1, 9. So it's going to be 9/6, which will be actually 3/2, right? So it is going to be 3/2. Okay, then we can be able to write this as 3/2 here directly. तो next step में क्या मिलेगा, देखो हमको यहाँ पे, तो 1/CS will actually be equal to D upon 3a epsilon naught into 3/2 डायरेक्टली हियर। ये पूरे का जो सम है वो 3/2 आ गया। अब ये 3 अगर कैंसिल कर दो तो बचेगा सिंपली d अपॉन 2 times of a epsilon naught, right? And hence we can just take reciprocal of both sides. तो अगर दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको ये मिलेगा सिंपली CS which is equal to 2a epsilon naught upon d, that's all. देखो ठीक से 2a epsilon naught upon d. This is going to be the answer of the first question. Okay, alternatively we can do one thing. एक और एक फॉर्मूला हमारे पास है, रेडीमेड फॉर्मूला भी तुमको लिख के दिया था, तुमको याद होगा। CS in this situation CS is actually equal to, ये देखो बताया था आपको कि it can be written to be equal to a into epsilon naught as it is, that is to be divided by d1 upon k1, right, plus here it is d2 upon k2 plus d3 upon k3, करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, वही आंसर मिलेगा, बट कैन डू इट डायरेक्टली, एक ही स्टेप में हमको मिलेगा, ज्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा इसमें जैसे हमको करना पड़ा, ठीक है। तो अभी इसमें देखो ठीक से, a epsilon naught is going to be constant, it is kept as it is, and here d1 d2 and d3 all of them can be replaced by this d/3 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 each, so even we can take it common, but चलो ठीक है फिलहाल रखो उस अंदर। तो d/3 divided by k1 plus d/3 divided by k2 plus d/3 upon k3, correct है। And then if we take this d/3 common out, then we can be able to find it out as CS is equal to, so here it is going to be a epsilon naught kept as it is, and here it is going to be d/3 common, and here it is left with 1 upon k1 plus 1 upon k2 plus 1 upon k3, okay. But as we have seen that this 1 upon k1 plus 1 upon k2 plus 1 upon k3 becomes equal to 3/2, just we have seen and solved it here, अभी हमने उसको सॉल्व करके देखा है, तो वो 3/2 आता है। तो वो अगर हम डाल देंगे यहाँ पे तो हमको डायरेक्ट मिलेगा उसका वैल्यू, और हमको मिलेगा a epsilon naught upon d/3 multiplied with 3/2 here, so that this 3 gets cancelled, and what we are left with is this 2 can be taken in the numerator so as to get it as 2a epsilon naught upon d, that's it, which is going to be the answer again। चलो ठीक है, अभी देखो इसमें मैंने ये तुमको 2 मेथड से बताया, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेथड कुछ काम का नहीं है। ये वाला जो मेथड हमने पूरा किया वो कुछ काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये प्रूव करने के लिए हमने वो वाला मेथड यूज किया था, वो एक बात। और दूसरी बात अब यहाँ पे कि ये दूसरा वाला जो सम है, दूसरा वाला जो सब क्वेश्चन है, वो सॉल्व करने के लिए तुमको ये वाला दूसरा वाला मेथड ही यूज करना पड़ने वाला है, उसके लिए कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है।
देखो करके ठीक से, ठीक है। तो अभी देखो let us try to solve this second part of the question. So first of all, let us copy this whole question on the new page. So as to solve the second part now. तो second part हमको ढूंढना है, तो उसके लिए ये जो इतना पार्ट है छोटा, ये वाला पार्ट हम सपोज क्रॉप करके यहाँ पे लिखेंगे और उसको थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे। ये देखो ठीक से, अब ये इस तरह से है। दिस इज द सिचुएशन। दिस सिचुएशन कैन बी कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू अ सिचुएशन इन विच देयर आर 3 कैपेसिटर्स। देखो ठीक से, ये जो एरिया है, ये एरिया A/2 है, और ये A/2 एरिया के अंदर ये रीजन है। देखो उसका जो कैपेसिटी है, मतलब उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 4 है, और वो मटेरियल अलग है। याद रखो ठीक से, दिस इज अ डिफरेंट मटेरियल हियर, एंड एट द सेम टाइम हियर अगेन वी कैन सी हियर इज अ डिफरेंट मटेरियल। ये अलग टाइप का मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, तो उससे अलग कैपेसिटर बनने वाला है। ये देखो ये इस तरह से। और तीसरा जो है ये इस टाइप का मटेरियल, ये इसका मटेरियल ही अलग है, इसलिए उसका जो कैपेसिटी है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। ये देखो इस तरह से, समझा ठीक से। सो वी कैन टेक दिस कैपेसिटर as C1, okay, this capacity as C2 and this as C3, no doubt, okay। तो ये 3 कैपेसिटर्स यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। अभी इसको अगर हम थोड़ा इक्विवेलेंट डायग्राम अगर इसका ड्रॉ करेंगे ना, तो देख सकेंगे आराम से कि ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट यहाँ पे ही है, और यहाँ से ये कंडक्टर निकल रहा है, और उसके बाद 2 ब्रांचेस, यहाँ पे 2 ब्रांचेस, ठीक है। ये इस ब्रांच में एक ही कैपेसिटर है, ठीक है। लेफ्ट वाले जो ब्रांच दिख रहा है वहाँ पे एक ही कैपेसिटर है, लेकिन राइट वाला जो ब्रांच दिख रहा है वहाँ पे 2 कैपेसिटर्स है। और फिर पॉइंट Q यहाँ पे हमको मिल रहा है। दिस इज द पॉइंट Q हियर, ओके। देखो ठीक से, ये जो कैपेसिटर है दिस इज गोइंग टू बी ऑफ वैल्यू C1, जिसकी हमने अभी बात की थी। दूसरा ये जो कैपेसिटर है उसका वैल्यू C2 रहेगा, और तीसरा कैपेसिटर C3, ओके। ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट के अंदर का कैपेसिटर इधर दिख रहा है हमको C1 हियर। ये जो पार्ट है इसका कैपेसिटर इधर है C2, उसको हम बोल सकते हैं आराम से। और ये तीसरा जो पार्ट है उसका कैपेसिटेंस इधर दिख रहा है हमको, C3 बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको जो टोटल जो कैपेसिटेंस है, तो वो एक्चुअली इस पूरे सिस्टम का इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमको ढूंढना होगा। तो उसके लिए देखो C1 के लिए सबसे पहले मुझे बताओ C1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, बताओ। C1 का देखो ठीक से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A/2 है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। देखो इन जनरल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो याद रखो ठीक से, C इज ऑलवेज इक्वल टू A इप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। ये बेसिक फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला यही है। अभी इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमको मिलेगा, देखो A के बदले क्या आएगा, A/2, करेक्ट, ठीक है। फिर इप्सिलॉन नॉट एज इट इज इनटू K के बदले क्या आएगा, ये देखो K1, राइट। तो ये बन गया K1, and that is to be divided by distance between the two plates, which is going to be D here. So therefore it is going to be D here, okay। So you can write it as C1 is equal to A epsilon naught K1 upon D 2D here, okay। This is going to be actually C1, equation number 1। Get this C2 here, how can we find it out। तो C2 के लिए हम देख सकते हैं, C2 के लिए भी फॉर्मूला तो यही है,
यही फॉर्मूला हमको यूज करना है। बट C2 का देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A/2 है, देखो ठीक से। So we can replace it by that. Here it is going to be A/2, and that is to be multiplied with epsilon naught, right? So this is epsilon naught here, and K2 is the dielectric constant of this medium here, and it is divided by the distance between the plates, which is d/2 here. And that's why d/2 will appear here in the denominator, which is actually going to be equal to, अच्छा इसमें क्या है ना कि ये जो 2 है वो सीधा कैंसिल हो जाएगा, A/2 का और इस d/2 का जो 2 है वो अगर हम कैंसिल कर देंगे तो सीधा हमको मिलेगा A into epsilon naught into K2 the whole divided by D, no doubt. Give this equation number 2 here and go to this third equation. तो थर्ड कैपेसिटर की तरफ जाओ, अभी C3 निकालना है हमको. So how will get that? तो C3 will actually be equal to, अब देखो उसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A/2 ही तो है, no doubt. So this is going to be A/2 here into epsilon naught, that is the permittivity, and that is multiplied by K3 here, K3 that is the dielectric constant of that medium, and this is to be divided by d/2 once again, that is the distance between the two plates here in the C3. So it is going to be d/2 here. Okay, once again we can see clearly that this A/2 and d/2, तो उसमें से जो 2 है तो वो कैंसिल हो जाएगा सीधा, ये देखो ये 2 और 2 अगर कैंसिल कर दो तो बाकी जो बचेगा तो उसको हम लिख सकते हैं आराम से, तो वो बनेगा एक्चुअली A into epsilon naught K3, and that is to be divided by D, no doubt, and this is going to be equation number 3. Okay, and then we'll be able to find out the effective capacitance here. As we can see clearly that these two C2 and C3 are going to be in series, right? So since they are in series, the formula for series combination will be applied in that case. तो उसके लिए series combination का formula लगेगा. So we can say since C2 is in series with C3, okay, so we can say that this if suppose CS is the series combination, effective combination of this series combination here, तो अगर CS ये जो है ये इन दोनों के इफेक्टिव कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस है, तो CS के लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, 1/CS इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3, करेक्ट है, तो ये हमको मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन C2 और C3 के जो वैल्यूज है वो हमको मिलने वाले इधर इक्वेशन नंबर 2 और 3 में से, देखो ठीक से, जस्ट रिप्लेस देम बाय दैट एंड गेट दिस एज 1/CS which is going to be equal to 1/C2, मतलब इसका रेसिप्रोकल जो बनता है D/A epsilon naught into K2 प्लस दूसरा 1/C3, मतलब इसका रेसिप्रोकल जो बनता है D/A epsilon naught into K3, ओके, ठीक है। तो अभी इन दोनों को अगर हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं इसमें से, तो देखो D/A epsilon naught can be taken common, and what we are left inside 1/K2 plus 1/K3. But already we have seen that K2 and K3 are given in the numerical. कितना है वो, K2 is 3 here. See here, K2 is 3 and K3 is 6, right? So you can just replace them by that and get this simplified further as, so 1/CS actually becomes equal to D/A epsilon naught into 1/3 plus 1/6, so that it can be written to be equal to D/A epsilon naught into, what is this here, 1/3 मतलब 2/6 plus 1/6 comes out to be 3/6, and 3/6 मतलब 1/2, right? 1/2, and hence we can say that if we take the reciprocal, तो ये देखो यहाँ पे 1/CS is actually going to be equal to D/2A epsilon naught, right? So this gives us that CS is equal to इसका रेसिप्रोकल जो बनेगा 2A epsilon naught upon D, no doubt.
So this is actually going to be the value of CS, we can see. But now just think about here in the diagram that this CS is going to be the effective capacitance of this combination here, C2 and C3. So this CS is going to be in parallel to C1, right? So parallel combination में क्या होता है, addition होता है capacitance का, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि here this CS obtained here is in parallel with C1, and therefore the effective capacitance of this parallel combination, which is going to be Cp here, can be written to be equal to CS plus C1, right? So CS plus C1 हमको करना होगा, where CS happens to be this, simply it is going to be 2a epsilon naught upon d plus C1, which is actually going to be, see here, C1 already we have found it out. C1 is going to be here, see here, a epsilon naught K1 upon d, and don't forget what is K1 here. K1 is 4. Okay, so first of all just try to remember this, a epsilon naught K1 upon 2d, a epsilon naught K1 upon 2d. Okay, so a epsilon naught K1 upon 2d, and now we'll just recall what is the value of K1 here. Just see here, K1 is going to be 4, right? So if we replace it by that, then we can get this K1 as 4, so that we get this as 2a epsilon naught upon d plus a epsilon naught into 4 upon 2d, so that this 2 just gets cancelled with 4, leaving behind 2 here, and what we are left with inside here is, it will become 2a epsilon naught upon d plus, again it is 2a epsilon naught upon d, which adds up to simply double of that. So we can say that it will be 4 times of a epsilon naught upon t. So this will be the value of Cp, and that is going to be the actual value or final value, we can say. So see here, this is going to be actually the final value of capacitor. For a epsilon naught upon d. Okay, yes, for a epsilon naught upon d, which is there as option number as the answer of second question. Okay, तो second question का आंसर हमको ये मिल गया. चलो ठीक है. Okay, so this was the last question you have to do. Okay, so we declare here that the electrostatics has been finished with the numericals. If you have any doubt, you can continue, or you can end here. Yeah, I have unmuted all of you. You can unmute yourself and just ask the doubt if you have any. Yes, no doubt. चलो ठीक है, फिर मिलते हैं next time. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir.